Hello everyone, welcome back to my channel. And I have not posted from a very long time on YouTube, but I am coming up with series about personal transformation, and in each video we will be taking up a topic and talking about it because transformation has been a very consistent theme in my life. It happens to me more often and frequently because I am very open to growth, learning, and enhancing my understanding, enhancing my perception. So it is one of the times in my personal life too that I am going through a transformation. I have started feeling the subtle changes inside of me, and that will definitely reflect in the external world very soon. But I wanted to talk about it because this is a highly misunderstood concept of personal transformation. So today's video will be titled as the fundamentals of personal transformation. So to all those who are new, I am a life coach. I help people achieve their personal and professional goals. I help people find out their authentic self, their core values, who they are really, and what are some of the career options that will really work for them. What are the things that they can change about their habits so that their finances, career, relationships, they can experience a totality of happiness, whether they are experiencing success or failure, whether experiencing good or bad things in their life. So I help people develop a deeper connection with themselves, bring more awareness to themselves. So a very common thing that was in my mind, that whether can we really change others, or whether can we really change human beings, because we see in our day-to-day lives, in our day-to-day relationships, that we always want the other person to change. We always think कि इसमें ना इसकी जगह ये नहीं, ये क्वालिटी होती ना तो ये पर्सन और अच्छा हो सकता था. And then sometimes we also suggest this change to other people, but we have to understand that people very strongly identify about certain things about themselves, and changing those identities is not easy. So but when people are open and willing to change that identity, because अब ना either वो उस identity से बोर हो चुके हैं, because or they are understanding कि I'm something more than this, this identity is not enough for me, there is something more to this identity. तो that time people are willing to change. तो हम लाइफ कोचेस का वहीं पे काम आता है, where people are really willing to change. और मैं बताती हूँ, बहुत कम लोग हैं जो एक्चुअली में दे आर ओपन एंड विलिंग टू चेंज फॉर बेटर. ओके, and this is a very funny observation that I have through my personal experience. Now you watch any kind of spiritual video, spiritual text, personal development पे, या आप खुद को ऑब्जर्व कर लो, ऑब्जर्व योर सेल्फ, you will see there is something within you which constantly wants to expand, which constantly wants to do something more. You want to, when you were in first or second standard, we were told that we'll be going to third, fourth and 10th and 12th, or if you get success in that particular exam after your 12th, you want to do something bigger, the next step. A natural human being always wants to take something big. People are there, और जब हमारा फर्स्ट सेशन होता है या क्लैरिटी कॉल्स, पीपल से दैट मुझे ज़िंदगी में कुछ करना है, आई वॉन्ट टू मेक अ डिफरेंस, आई वॉन्ट टू चेंज द वर्ल्ड, एंड वी हैव सच बिग आइडियाज़. हम ऐसा करना क्यों चाहते हैं? क्योंकि वो जो इनर एक्सपेंशन है वो बाहर प्रोजेक्ट होना चाहता है. दैट अर्ज टू कॉन्स्टेंटली ग्रो इज़ ऑलवेज देयर. बट जब हम किसी चीज़ को लेकर बहुत आइडेंटिफाई हो जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई एम टू आइडेंटिफाइड विथ माई कम्युनिकेशन स्किल्स, ओके, और मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को ना बस वन ऑन वन कॉन्वर्जेशंस में बोल रही हूँ, और मैं बोल रही हूँ मैं ना मेरी कम्युनिकेशन अच्छी है बट आई एम क्वाइट ऑफ एन इंट्रोवर्ट, तो मैं वन ऑन वन कॉन्वर्जेशन ही प्रेफर करती हूँ, या कोई लाइफ कोच बोले कि मैं सिर्फ वन ऑन वन करता हूँ. बट अगर मेरी आइडियाज़ वर्थ है टू शेयर ऑन अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म, बट जस्ट बिकॉज ऑफ फियर ऑफ रिजेक्शन और फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, मैं अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को अगर कन्वे ही नहीं कर रही हूँ, तो मैं उस बिलीफ की वजह से, या मैंने जो रॉन्ग लेबल लगा के रखा है मुझ पे कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ या मुझे सोशल होना पसंद नहीं है, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपनी ग्रोथ को लिमिट कर देती हूँ उस एक बिलीफ की वजह से. सो ग्रोथ और एक्सपेंशन का अर्ज इंसानों में नेचुरल है, बट ये सारी जो लेबल्स हम लगाते रहते हैं, जब से हमें समझ आने लगता है तब से ये चीज़ रुक जाती है. और कभी कभी ना इंसान इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है ये लेबल से जो हम खुद पर लगाते हैं, कोई और हम पर लेबल्स नहीं लगाता.
भले ही कोई आपको बोल रहा हो दैट यू आर अ वेरी स्टूपिड पर्सन 10 बार बोल रहा हो, तो ठीक है, कोई बच्चा अगर होगा तो वो मान लेगा कि ओके आई एम अ स्टूपिड पर्सन। बट अभी आपको वो सेंस है टू एक्चुअली एनालाइज कि अच्छा इसने कौन से बेसिस पे बोला। आप खुद के दिमाग में वो चेक करो और फिर डिसाइड करो कि मुझे अपने ऊपर वो लेबल लेना है या नहीं। तो इतनी विजडम मतलब डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है अबाउट द एज ऑफ 18 भी आप बोल सकते हो, जहाँ पे थोड़े से आपके हॉर्मोन्स जो है लेवल पर आने लगते हैं। उसके बाद तो आप खुद की इंटेलिजेंस को आपने यूज़ करना ही चाहिए बिफोर टेकिंग समबडी एल्सेस लेबल्स एज योर ओन। मतलब कि दूसरे लोग आपको जो ग्लासेस से देख रहे हैं, अगर आप खुद को उन्हीं ग्लासेस से देखोगे, सो यू विल नेवर फील दैट यू आर लुकिंग एट योर सेल्फ विथ एनी काइंड ऑफ जस्टिस। क्योंकि ऐसे ही होता है, जो हमारे सबसे क्लोज लोग होते हैं हम उनके ग्लासेस के थ्रू खुद को देखने लगते हैं, और ये बहुत नेचुरल बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बट अगर आप खुद में ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हो, उसका मतलब ये है कि आप खुद को समझना चाहते हो। You want to increase your understanding about yourself and about the world. For example, if my understanding about myself and the organization that I work for increases, or my understanding about myself and my business increases, I am naturally going to be more happy while I am pursuing something. And I didn't say more successful, मुझे ज़्यादा पैसे मिलेंगे, ये वो मैंने क्या बोला, I am naturally going to be very happy. पीपल वॉट दे फील इज़ दैट कुछ भी नया करने से पहले ना डिस्कम्फर्ट होगा, कुछ भी नई कोई बिलीफ टूटते हुए आइडेंटिटी टूटेगी तो लिटरली हार्ट ब्रेक जैसे पेन फील होता है फॉर द पीपल हु आर वेरी वेरी आइडेंटिफाइड विद सर्टन थिंग्स। उन्हें बहुत तकलीफ होती है। तो उस टाइम पे अगर मैं बस बोलूँ कि नहीं नहीं आपके लिए तो वहाँ पे सक्सेस ही प्रॉमिस्ड है, आपके लिए तो यही प्रॉमिस्ड है, सो अगर मुझे आपको कुछ बेचना होगा तो आई विल डेफिनेटली से नहीं नहीं, उसके एंड पे ना सक्सेस ही है एंड देयर वोंट बी फेलियर्स अलॉन्ग द वे। इनफैक्ट मेरी फिलॉसफी या मेरा ऑब्जर्वेशन बहुत अलग है। मेरा ऑब्जर्वेशन है फेल फास्ट, 1000 चीज़ें ट्राई करके देखो, तब आपको खुद ब खुद ही पता चल जाएगा और आप नई चीज़ें ट्राई करने से डरोगे नहीं। तो मैं लोगों को ना उस मोमेंट पे सपोर्ट करती हूँ जहाँ पे उनके ट्रांसफॉर्मेशन का इनिशियल फेज चल रहा है, उन्हें वो नेविगेट करने में डिफ़िकल्टी जा रही है। जो 1000 एक्सपेरिमेंट करने में करेज और क्लैरिटी लगती है वो नहीं है। आप 1000 की जगह वही चीज़ें अगर आपको 10-15 एक्सपेरिमेंट में समझ में आ जाएंगी तो आपका सेंस ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन भी पूरा हो रहा है, आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो रही है। तो मुझे एक मेंटरिंग और कोचिंग का कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है व्हेन आई एम डीलिंग विद पीपल इन जनरल। सो दैट इज़ इट कि ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, दैट यू आर ट्राइंग टू इंक्रीज योर ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स एंड स्पेशली अबाउट योर सेल्फ। और जब हमने खुद को इतने सारे ग्लासेस से देख लिया होता है तो बहुत बार हम जो हमारा खुद का ही विजन है चीज़ों को लेकर कि मेरा परसेप्शन कैसा है चीज़ों को लेकर, उसे भूल जाते हैं, या फिर वो इतना लिमिटेड हो जाता है कि हम उसको एक्सपैंड नहीं कर पाते। तो इसके सबसे अच्छे तरीके हैं कि आप उन लोगों की कंपनी में ज़्यादा रहो जो चीज़ों को ना एज इट इज़ देखना जानते हैं, समझते हैं, या फिर देखते हैं, या फिर एटलीस्ट वो जर्नी में है। वो लोग जो इल्यूजन्स के साथ खुश नहीं रहते। मीन्स फॉर एग्जांपल, अगर कोई मुझे बोल दे कि ओके ये चीज़ ऐसी ही है, मैं कभी भी, मेरा दिमाग ही ऐसा है कि मैं उस चीज़ को कभी भी वैसे के वैसे नहीं लूँगी, नो मैटर हु इज़ सेइंग इट इन द वर्ल्ड। ओके, एंड आई रिस्पेक्ट दैट क्वालिटी अबाउट माई सेल्फ कि एक बार न सही आई विल वेरीफाई इट। मैं 2-3 जगह जाकर पूछूंगी या देखूंगी, या फिर मैं खुद एक्सपेरिमेंट करके देखूंगी, बट आई विल नेवर टेक एनी लेबल। या कोई चीज़ कोई ऐसे ही बोल रहा है तो मैं उसको वैसे ही ले लूँगी अपने ऊपर। दैट विल वेरी रेयरली हैपन। बट इफ़ यू गो अहेड एंड सी कि मैं पहले कैसी थी, तो शायद मैं ले लेती थी अगर मुझे वो लेबल बहुत पसंद आ जाता था, या फिर मुझे अटेंशन और अप्रिसिएशन बहुत ही अच्छा लगता था। अभी भी अच्छा लगता है, बट उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मैं बह जाती थी उस साइड पर। तो अभी ना मुझे पता है कि जो पर्सन हर एक बात पे अगर आपको अप्रिशिएट करता है विदाउट रियली कि कभी कुछ नेगेटिव बोल ही नहीं रहा है, कभी कुछ कोई फ्लॉ के बारे में बात ही नहीं कर रहा है, बस दिस पर्सन इज़ जस्ट टॉकिंग अबाउट कि हाँ वाह वाह वाह, हर बात पे वाह वाह चल रही है, तो मुझे वहाँ पे सस्पिशन होने लगता है। क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा कि मेरा हर एक्शन राइट होगा, ऐसा कभी नहीं होगा कि मेरे आसपास के लोग मेरे हर चीज़ से अग्री करेंगे। तो हमें डिसअग्री करने वाले लोग, जो चीज़ जैसी है उसको देखने वाले लोग, ये सारे लोग भी आसपास चाहिए होते हैं। बट क्या हमें खुद को किसी के दिए हुए लेबल से देखना चाहिए? नहीं देखना चाहिए। वी शुड इंक्वायर दैट फॉर आवर सेल्फ। तो सबसे पहले अगर
आपने कुछ ऐसे लेबल्स आपको लगा कर रखे हैं जिनको हटाना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, तो आप एक सिंपल सी एक्सरसाइज कर सकते हो। एंड दिस इज़ द फंडामेंटल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कि आपको एक आप पेज ले लो एंड एक कॉलम में आप वो सारी चीज़ें लिखो जो दूसरे लोग आपके बारे में कहते हैं, जो भी लेबल हो, पॉजिटिव लेबल हो, नेगेटिव लेबल हो, जो भी आपके बारे में कहते हैं। और उसके बाद आप दूसरी साइड पे वो चीज़ें लिखो कि आप एक्चुअली में क्या हो उस कॉन्टेक्स्ट पर। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक जगह पे लोग कहते हैं कि यू आर ओवरली सेंसिटिव, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो। आप दूसरी साइड लिख सकते हो कि आप एम्पैथेटिक हो। और कहीं कहीं पे लोग बोल सकते हैं कि इस इंसान को बेवकूफ़ बनाना बड़ा आसान है क्योंकि दिस इंसान इज़ वेरी वेरी इमोशनल। सो अब आप न्यू साइड पे लिख सकते हो दैट आई वांट टू हैव बेटर बाउंड्रीज। देखो, इफ़ यू आर अ वेरी सेंसिटिव एंड इमोशनल पर्सन हु वांट्स टू हेल्प सो मेनी पीपल, तो ऐसा हो जाएगा कभी कभी कि लोग आपकी उस क्वालिटी का गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। तो अगर कोई आपसे ये कहता है कि तुम बहुत इमोशनल हो, सेंसिटिव हो, तो वहाँ पे बुरा मानने की जगह कि उसने ऐसा मुझे क्यों कहा, एंड फीलिंग बैड अबाउट दैट क्वालिटी, फर्स्ट बी वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर टू थिंग्स। पहला, ग्रैटिट्यूड कि आपके अंदर ये क्वालिटीज़ है। वी नीड मोर इमोशनल एंड सेंसिटिव पीपल इन दिस वर्ल्ड, ट्रस्ट मी। मैं लोगों को जब देखती हूँ, हमें ज़रूरत है ऐसे लोगों की, बट वो लोग जो इमोशनल सेंसिटिव है एंड दे हैव गुड बाउंड्रीज, हमें ऐसे लोगों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो जो बड़ा वाला पार्ट है इमोशंस और सेंसिटिविटी का, वो आपके पास है। तो अभी आप बाउंड्रीज़ बनाना सीख लो। और बाउंड्रीज़ बनाना आप किन से सीख सकते हो? जिनकी ऑलरेडी बहुत अच्छी बाउंड्रीज़ है। आप लाइफ कोचेस के पास जा सकते हो, थेरेपिस्ट के पास जा सकते हो। इन सारी चीज़ों के ऊपर से आप अपनी बाउंड्रीज सेट करना सीख सकते हो। और उसके बाद आप, मैंने कहा, दो चीज़ों के लिए ग्रेटफुल फील करोगे। पहला तो आपके अंदर ये क्वालिटी है, और दूसरा ग्रैटिट्यूड आपका इस चीज़ के लिए होगा कि आपको किसी ने उस टाइम पे एक इंडिकेशन दे दिया कि इस चीज़ को अगर बाउंड्रीज़ में हमने नहीं रखा तो हमारा नुकसान हो सकता है। क्या वो इंसान गलत है? चाहे उनका बोलने का तरीका बहुत अजीब हो सकता है, क्योंकि आप, एवरीबडी इज़ नॉट अ कम्युनिकेशन एक्सपर्ट। एवरीबडी, हम सबको नहीं सिखा सकते कि तुम्हारी टोन कैसे होनी चाहिए एंड ऑल। बट हाँ, जो लीडरशिप पोजीशन में जाना चाहते हैं, जो बड़ी चीज़ें करना चाहते हैं, उन्होंने सीखना चाहिए अपने टोनैलिटी, अपने कम्युनिकेशन के बारे में। बट हर किसी को नहीं सिखाया जा सकता। तो वॉट विल यू बी डूइंग? यू विल बी लुकिंग एट दोज थिंग्स, यू विल नॉट बी डिस्कार्डिंग कि अच्छा मेरे बारे में ऐसा सब बोलते हैं तो लोग बुरे ही है, एंड यू स्टार्ट फीलिंग लाइक अ विक्टिम। आप उन लेबल्स पे इंक्वायरी करोगे, एंड एवरी क्वालिटी दैट यू हैव, एवरी लेबल, उस लेबल का आपकी लाइफ में एक बहुत अच्छा पार्ट होता है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया इमोशनल होने का, सेंसिटिव होने का, और आपकी लाइफ में वो कहीं कहीं पे नेगेटिवली भी प्ले करता है। तो दिस मेक्स मी कम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द फंडामेंटल्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, दैट कभी भी ये सोचना कि मुझे सिर्फ इस चीज़ से अच्छा मिले और उसके साथ वो जो बुरा आता है, उसके साथ जो सफरिंग आती है, वो ना मिले, ये खुद ब खुद एक बहुत बड़े कन्फ्यूजन के अंदर एंटर करना है, राइट? अगर फॉर एग्जांपल आपको एक इंस्ट्रूमेंट दिया गया है, ठीक है, नाइफ़ दी गई है कट करने के लिए, और बहुत शार्प नाइफ़ दी गई है। अब आप उस नाइफ़ से सब्ज़ी भी काट सकते हो, और अगर आपको यूज़ करना नहीं आता तो आपका हाथ भी कट जाएगा, आपका हाथ भी कट सकता है। तो हर एक इंस्ट्रूमेंट का, जैसे हमारा माइंड भी एक लेज़र शार्प नाइफ़ जैसा इंस्ट्रूमेंट है, तो वैसे इंस्ट्रूमेंट को कैसे यूज़ करना है हमने डेफिनेटली सीखना चाहिए। और जब हम लोग स्पेशली अपने इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं, जैसे हम लोग हमारे माइंड की बात करते हैं, हमारे बॉडी की बात करते हैं, द मोर यू अंडरस्टैंड इट, द मोर यू लर्न अबाउट इट। एंड इन द सेकेंड वीडियो वी विल डेफिनेटली डिस्कस कि पोलैरिटीज़ का क्या रोल होता है ट्रांसफॉर्मेशन में। मैंने जैसे कहा कि एवरी गुड थिंग हैज़ समथिंग बैड इन इट एंड एवरी बैड थिंग हैज़ समथिंग गुड इन इट, राइट? वी विल बी डिस्कसिंग दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। हम लोग कुछ बहुत अच्छे फ़िलासफ़र्स की बातों को भी डिस्कस करेंगे जिन्होंने मुझे एक्चुअली हेल्प की है इस चीज़ को समझने में। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन की सीरीज़ रहेगी, इसको हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट और स्पिरिचुअलिटी को बहुत प्रैक्टिकल एंगल से देखेंगे, क्योंकि मैं भी बहुत सारी स्टडीज़ करती हूँ, बहुत सारे लोगों की बातें सुनती हूँ, और मुझे ये ध्यान में आया है कि अगर हम चीज़ों को प्रैक्टिकलिटी के बेसिस पर नहीं देखेंगे तो इन चीज़ों का कोई मतलब ही नहीं है। आई मीन
एक इंटेलेक्चुअल एंटरटेनमेंट के लिए बहुत अच्छा है कि मैं भी इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन मुझे अच्छा लगता है कि कोई ना बहुत अच्छी डिबेट चल रही हो, कोई कॉन्शियसनेस पे बहुत अच्छा लेक्चर चल रहा हो, मैं सुनती हूँ, मेरी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, सब कुछ होता है। बट अगर मैं उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती मेरी लाइफ में, तो वो अच्छी नॉलेज है बट उसका रोल फिर वहीं तक है। वो कुछ मुझे चेंज करने में मदद नहीं करेगी इन द रियल लाइफ। तो हम लोग हर चीज़ को बहुत प्रैक्टिकल एंगल से देखने की कोशिश करेंगे। और आप इमोशनल हो, सेंसिटिव हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके डीप मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स नहीं बन सकते, आपको हमेशा अकेले रहना पड़ेगा। या आपको अगर सॉलिट्यूड पसंद है तो कभी आप अपने केज के बाहर जाओगे ही नहीं। दिस इज़ नॉट ट्रू। यू नो, डीप रिलेशनशिप्स एक ही चीज़ पे बनते हैं कि आपका खुद के साथ रिलेशनशिप कैसा है, वैसे ही आपके रिलेशनशिप्स मीनिंगफुल और डीप होते रहते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, रिलेशनशिप्स आर मिरर ऑफ हु यू रियली आर। सो जब आप अपने अंदर अंदर के वर्ल्ड को चेंज करते हो, बाहर का वर्ल्ड ऑटोमेटिकली आपके लिए चेंज होता है। और इसी के बारे में हम बहुत सारी बातें करेंगे। पर्सनली वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस सीरीज़। मैं खुद बहुत डिसल्यूजन फील कर रही हूँ और थोड़ा रियलिटी के और पास फील कर रही हूँ और ग्राउंडेड फील कर रही हूँ व्हेन आई स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट दिस। सो येस, डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू हेल्प अस टू गेट क्लोजर टू being more courageous, more confident, and more clear in our journey towards greatness. So, bye bye, everyone.